میں نے مقدس شہر یعنی نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے مالک کے لیے شنگار کیا ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج 25 فروری 2021 کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی خدمات کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، جس میں وسیع تر دفتر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ عمارت کا وسیع ہونا ہی کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی سرگرمیوں اور خدمات کے وسیع ہونے کو پیش کرتا ہے، جس میں پہلے سے زیادہ لوگوں کو کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھانے، بائبل مقدس کے قریب آنے، بائبل مقدس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا اور بھی زیادہ موقع ملے گا۔ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے وجود یعنی 2002 سے لے کر آج تک یعنی 19 سال، ان 19 سالوں کے لیے ایک طرف تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، ملکی اور غیر ملکی، زندہ اور مرحوم، جنہوں نے پاکستان میں بائبل مقدس کے فروغ کے لیے کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی مالی معاونت کی، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے پروگراموں کے شرکا، بائبل کمیشن کی شائع کردہ کتابوں کے خریدنے والے، کتابوں کے پڑھنے والے اور کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے گزرے 19 سالوں کے سٹاف کے لیے اور کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی کسی بھی طرح سے اچھی سوچ رکھنے والے اس کے خیر خواہوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آج کے دن ہم بائبل مقدس کے فروغ کے لیے، پاکستان کے مومنین کے بائبل مقدس سے محبت کے لیے کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی تمام کوششوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو بہنوں، جہاں ہم نے خدا کی مہربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ہم یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ اس عرصہ میں ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ آئیں ان سب کو ذہن میں لائیں اور اسی بات کے آغاز پر اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے خدا رحیم سے رحم کے لیے ملتجی ہوں۔ میں کاظم خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری، سب فرشتوں، مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ کاظم خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ تو ہمیں بچانے کے لیے انسان بنا، اے خداوند رحم کر۔ تو نے ہماری خاطر صلیبی موت سہی، اے مسیح رحم کر۔ تو نے ہماری آسمان کی راہ دوبارہ کھول دی، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا کریں۔ اے ازلی ابدی خدا، تو نے اپنی مہربانی سے اپنی امت کو کلیسیا کہا ہے، بخش دے کہ تیرے لوگ تیرے نام پر اکٹھے ہو کر تجھ سے ڈریں، تجھ سے محبت رکھیں، تیری پیروی کریں اور تیری رہنمائی کے ساتھ وعدے کے آسمانی گھر میں پہنچیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 17 باب 7 سے 10 آیات۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے اور خداوند جس کی جائے توکل ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہو، جو اپنی جڑیں تری میں پھیلاتا ہے اور جب گرمی آئے تو محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے پتے سبز رہتے ہیں اور خشک سالی میں اسے کچھ فکر نہیں اور پھل لانے سے نہیں تھمتا۔ دل تمام چیزوں سے زیادہ عمیق اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل کو جانچتا اور گردوں کو آزماتا ہوں
और हर एक इंसान को बमुताबिक उसकी राहों और कामों के फल के बदला देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद पे तमजीद हो। उसके 7वें बाब की हम 7वीं आयत से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उससे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उससे सांप दे? बस जबकि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देनी जानते हो, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीज़ें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तुरैत और सहाइफ़े अंबिया का खुलासा यही है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज एक तारीखी लम्हा है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ जमा हैं कि इस बाइबल के दफ्तर का संगे बुनियाद रखें। मिस्रा ने आपके सामने 19 साला कारकर्दगी पेश की है
اور دیکھا ہے کہ بائبل کا کام، اس کی اشاعت، اس کی رسالت روز بروز بڑھ رہی ہے، اس لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ اور جیسے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا اور ایک طویل جو ہے تیاری ہوئی۔ تقریباً یہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ وینس ہاؤسنگ اسکیم میں جو گھر تھا، جو دفتر تھا، وہ شاید اتنی تعداد میں بائبل کو رکھنے کے لیے ناکافی تھا، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا، اور یہ بھی خدا کی پروردگاری ہے کہ اس نے وسائل فراہم کیے، ایسے اشخاص دیے جنہوں نے دن رات اس کے لیے کام کیا اور اس خواب کو ممکن بنایا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سراسر آج کی پہلی تلاوت جو ہے اس پہ پورے اترتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اور پھر ان کو ایسے درخت سے، ایسے شجر سے تشبیہ دی گئی ہے جو پھل لاتا ہے اور وہ پھل قائم رہتا ہے۔ تو ہمارے بہت بڑے دانشور استاد ریورنڈ فادر ایمینول راسی جو اس سارے سفر میں پیش ہیں، بائبل کے فروغ کے لیے، بائبل کی تشہیر کے لیے، بائبل کی اشاعت کے لیے، بائبل کی تربیت کے لیے جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں، جگہ جگہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو فروغ کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ تو انہی کے ہاتھوں یہ منصوبہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے اس بندے کے ذریعے کیا کرامات اور کرشمے کیے ہیں۔ اسی طرح آج کی انجیل پاک بھی ہم پر باور کرتی ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ تو جتنے بھی پیش رو رہے ہیں انہوں نے خدا کے نام پہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جستجو کی ہے، اور خدا نے وسائل فراہم کیے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو اور وسعت ملے۔ اور اس کے لیے ہم خدا باپ کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ان اشخاص کے بھی، ان ہستیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، اپنے دل کھولے ہیں، اپنے ہاتھ کھولے ہیں، اور خدا کے کلام کی تشہیر کے لیے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم خدا کی برکات ان سب کے لیے چاہتے ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، جب ہم اس دفتر کے سنگے بنیاد کے دن آ پہنچے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر یہ اپنا عہد کرتے ہیں، اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جس جوش، جذبے، عقیدت اور محبت کے ساتھ بائبل کے لیے کام ہو رہا ہے، ہم اور جوش کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ آج کی عام ضرورت ہے کہ لوگ خدا کے کلام سے واقف ہوں، لوگ خدا کے کلام کو جانیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری آئندہ نسلیں وہ خدا کے کلام سے روشناس ہوں۔ جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی ہم اس کمیشن کی جو
प्रोडक्शंस हैं वो देख सकते हैं कि बाइबल मुख्तलिफ सूरतों में है। उसके बारे में बहुत सी कुतब हैं, बहुत से कोर्सेज हैं, इल्हामी ज़बानों को सिखाया जा रहा है। अलगर्ज हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोग खुदा के कलाम के करीब आएं और बरकत पाएं। जो इसको छूता है वो बरकत पाता है, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इस पर अमल करता है वो बरकत पाता है। तो हम आज सब इस बाबरकत मौका पर खुदा से ये इल्तिजा करते हैं कि वो हमें मज़ीद इस ईमान में पुख्ता करे कि हम किसी इंसान पर भरोसा करने की बजाय फ़क्त खुदा पर तवक्कुल रखें। वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो हमारे कामों को आगे लेकर जाएगा और वो हमें बरकत और खुशहाली बख्शेगा। और साथ ही साथ हमें कहा गया है, जो ज़री असूल भी है, कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी वही करो। तो आए हम भी फ़याज़ हों, हम भी अपने दिलों को बड़ा करें ताकि खुदा के कलाम की खिदमत करते रहें, खुदा के कलाम को फैलाते रहें। आमीन। अब आए हम अपनी अर्ज़ मनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। आए हम दुआ करें उन तमाम मज़दूरों और निगरान अफराद और उन सब लोगों के लिए जो इससे मालूम तामीर करेंगे कि खुदा बाप उन सब को तंदुरुस्ती और क़ुव्वत की नेमत से नवाजे, ताकि वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ कैथलिक बाइबल मिशन पाकिस्तान की वसअत पाती खिदमात और माली मुआवनत करने वाले मुक़र्रर हज़रात और अदारों के लिए जो कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए फ़राख़ दिली से माली मुआवनत करते हैं, कि ये सब अपनी खिदमत से बरकत पाकर खुदा के पाक कलाम को फैलाते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए मिलकर दुआ करें। कैथलिक बाइबल मिशन पाकिस्तान के चेयरपर्सन कदस महाबिशप इम्तियाज़ अहमद, वाइस चेयरपर्सन इज़्ज़त महाबिशप स्पेशल फ्रांसिस, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी फादर इमानुएल आसिफ, बोर्ड मेंबरान, राबताकारों और दफ्तर के स्टाफ के लिए जो कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ की सरगर्मियों कामों में अपनी खिदमत देते हैं, कि खुदा का कलाम उन सब को ज़िंदगी की बरकत और फ़ज़ाइल बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कलाम मुक़द्दस की बैनुल कलीसियाई मुत्तहदा खिदमत के इदारों के लिए पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और मुख्तलिफ टीवी, यूट्यूब चैनल्स और मीडिया के दूसरे ज़राए के लिए जो कलाम मुक़द्दस का प्रचार करते हैं, कि खुदावंद इन सब को इलाही हिकमत और फ़ज़ाइल की मामूरी से नवाजे, ताकि कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ का अमल हर दौर में जारी रहे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कोरोना वायरस जैसी वबा के लिए दुआ करें कि खुदा जो ज़िंदगी का खालिक और हर चीज़ पर कादिर है, पूरी दुनिया से इस मोहलिक वबा को ख़त्म करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। है हमारे खालिक और मालिक खुदा, तेरे बच्चों ने बड़े बोझ यकीन के साथ ही सब दुआएं तेरे हुजूर पेश की हैं, और जो दुआएं भी मादिरों में है तुम सब को कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका से हम तक पहुँचे मसीह खुदावन के वसीले से। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की खिदमात के इस खसूसी मौका पर आज के नजराने में वो ईंट पेश की जाएगी जो एक इमारत की बुनियादी इकाई होती है, और वो चीज़ें पेश की जा रही हैं जो कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की मुख्तलिफ खिदमात की अक्कासी करती हैं, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड, जिससे कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा खिदमत लोगों तक पहुंचती है।
कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की तमाम किताबें, बल्कि दूसरे होने वाले प्रोग्राम्स, बाइबल स्टडीज़, बाइबल एनिमेटर्स प्रोग्राम्स, इन सब के प्रोग्रामों की तरतीब भी इसी कंप्यूटर कीबोर्ड से ही लोगों तक पहुंचती है। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की पेश करदा अशात शुदा चंद किताबें, खसूसी तौर पर कैथलिक तफसीरुल कलाम, बच्चों की बाइबल, नौजवानों की बाइबल, कलाम कैलेंडर और दई वर्दुन की गोल्डन जुबली 1965 से 2015 पर शुरू किया गया SBS खतो किताबत के ज़रिए से होने वाला 4 साला कोर्स का सवालनामा और कलाम फेस्टिवल, कलाम मेले का इश्तिहार इन नजराना जात में पेश किया जाएगा। और इसके बाद एक पौधा इन नजरानों में पेश किया जा रहा है जो आज की तलावतों की मुनासबत से है। आज की तलावत में जैसे हमने सुना कि जो खुदा की शरीयत पर चलता है वो मुबारक है, और वो उस पौधे की मानित है, वो उस दरख्त की मानित है जो पानी के किनारे लगाया गया हो और जिसके पत्ते सरसब्ज रहते हैं। वो खुश्क साली में उसे कोई फिक्र नहीं और वो फल लाने से थमता नहीं। और फिर यूखरिस्ती नजराने, रोटी और मैं पेश किए जाएंगे। बाइबल मुकद्दस के फ़रोग़ के लिए जो नजराना जात आप पेश करेंगे वो आप उठकर उस टोकरी में डालेंगे, क्योंकि फादर इमैनुअल आसी कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की फ़रोग़ के लिए अतिया देने के लिए आपको खुद चलकर आना चाहिए। तो मैं आप सबको दावत दूंगी कि मेहरबानी से आप जाकर अपने हदियाजात पेश करें। कलम का हम मुबारक कहते हैं, तुमने अपनी शख्सियत चढ़ावा
अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिम तेरे बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमारे नज़राने कबूल कर, हमारी दुआएं सुन ले, अता कर कि रूहानी बेदों की ताकत और ये पाक कुर्बानी अपने असर से महरूम न रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त तो हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू अपनी फ्याजी के साथ इबादत के घर में रहता है और अपने फजल से लगातार हमारी मदद करते हुए हम रूह कुदूस की वो हैकल तामीर करता है जो पसंदीदा तर्ज जिंदगी के नूर से मुनव्वर होती है। नीज तो मसीह की कलीसिया को जिसकी तरफ दीदनी इमारतें इशारा करती हैं अपनी इलाही तासीर से पाकीज़गी अता करता है ताकि अनगिनत फर्जंदों की दौलत से मसरूर हो और आसमान पाते जलाल में कायम रहे। इसलिए हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ मिलकर हमेशा ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़ाने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैद का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। पास बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शे के मसीह का बदन खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। इबादत के इस मौका पर हम अपने उन मरहूमीन को याद करना चाहते हैं जो पिछले 19 सालों से कैथोलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के साथ मिलकर खुदा के कलाम को फ़रोग देते हुए अब खुदावंद में सो गए हैं। मखसूसी तौर पर दुख्तरान पौलुस सिस्टर दानियला की खिदमात को जो खुदावंद में सो गई हैं खुदा के सामने पेश करता हूँ।
बख्श दे कि जिस तरह वो सब मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उनके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ काज़िम तरी खुदा बाप को रूह कुदूस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने जात दिलों से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती ताज बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो। आए हम एक दूसरे के लिए सलामती चाहें। ऐ खुदा के बरे कर जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहाँ के गुनाह को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहाँ के गुनाह को टाल जाता है, हमें शांति इनायत कर। यह है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह टाल जाता है। मुबारक है वो जो बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। लेकिन सिर्फ उसी का बदन खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। तुम जिंदा पत्थरों की मांद रूहानी गार बनते जाओ, यानी एक मुकद्दस कहानत बनो
جو خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزارنا کرے۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا، تیری مرضی کے مطابق جہاں کی کلیسیا عالم بالا کے بیت المقدس کا نشان ہے، بخش کہ ہم اس پاک کی بات میں شریک ہو کر تیرے فضل کی ہیکل بنے اور تیرے جلال کے مسکنوں میں داخل ہونے کے قابل ٹھہریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ قادم تل خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر ہو اور ہمیشہ تک رہے آمین۔ ہماری بات اختتام کو پہنچی، خوشی اور سلامتی میں رہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ تو آپ کو آج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس خصوصی دن اور اس کی برکت اور مقاصد کے بارے میں جاننے کے لیے میں دعوت دوں گی فادر ایمینول آسی، ایگزیکٹو سیکرٹری کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کو، کہ وہ آئیں اور آج کے دن کی مناسبت سے چند باتیں ہم سے کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس یادگار موقع پر ہم آج شریک تھے۔ بشپ اندریاس رحمت، چیئرپرسن کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان، عزت مآب بشپ سیباسٹین فرانسس، وائس چیئرپرسن کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان، سسٹرز پروونشل اور فادرز پروونشل، ریکٹر صاحبان اور نیشنل کمیشنز کے ایگزیکٹو سیکرٹریز، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے بورڈ ممبرز، آفیسر سٹاف، عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی دونوں تلاوتوں میں استعمال کی جانے والی شبیہات اور علامات، امیجز اینڈ سمبلز، پانی، درخت، پھل اور دل کی روشنی میں اور خاص کر ارمیا کے صحیفے 17 باب کی 8ویں آیت، وہ پھل لانے سے نہیں تھمتا، اور کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے نئے قومی دفتر کی تقریب سنگ بنیاد کے موقع کی مناسبت سے اور آپ کی یہاں موجودگی کی بدولت میں اپنے اظہار خیال کو بائبل اور بہار کا موضوع دیتا ہوں۔ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے وجود اور خدمات کی تاریخ میں آج اہم تاریخی دن ہے۔ آج نئی اور وسیع تر عمارت کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب سنگ بنیاد منعقد کی گئی ہے۔ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی رویا یہ ہے کہ خدا کا کلام لوگوں کے قریب لانا اور لوگوں کو خدا کے کلام کے قریب لانا۔ ہماری خدمات کی 3 بڑے شعبہ جات ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اشاعت، تربیت اور تشہیر، فروغ۔ میں ان ایک سرگرمی کی تفصیل میں گئے بغیر کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی خدمات کی وسعت اور توسیع، ایکسپینشن اینڈ ایکسٹینشن پر بات کروں گا۔ میں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی 19 سالہ خدمات کو وسعت اور توسیع کے نقطہ نظر سے 5 ادوار میں تقسیم کرتا ہوں، 5 پیریڈز میں۔ پہلا دور 2002 سے 2007 کا ہے، جب کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان میں پاکستان دارالکلام میں 2 کمرے اور 2 سٹاف ممبرز پر مشتمل تھی۔ ہم اس وقت ہم نے 50,000 بائبل مقدس کوریا سے چھپوائی، یہ پہلی کمپیوٹرائز بائبل تھی۔ بچوں کی بائبل 60,000 چھپائی اور بھی بہت ساری کتابیں، اور جتنی بھی کتابیں ہم چھپواتے تھے مختلف شہروں اور اداروں میں انہیں سٹور کرتے تھے۔ دوسرا دور 2008 سے 2012 کا ہے، جب وینس ہاؤسنگ اسکیم فیروزپور روڈ پر کرائے کے مکان پر آئے، جہاں 5 کمرے اور 4-5 سٹاف ممبرز تھے۔ پھر 2011 میں ہم نے چین سے 70,000 بائبل مقدس شائع کی، 80,000 بچوں کی بائبل، بیربن دومینی خداوند کا کلام اور لارج فاؤنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چھاپا۔ اس کے بعد ہم نے 25 مرلے جگہ خریدی، 1 کنال 5 مرلے۔ ہمارے پروگرام سے کلام کے لاکھ دوست، بائبل میراتھن پاکستان 2012 اور الہامی زبانوں کے کورس متعارف کیے گئے، اور ہم نے ایک لڑکی کو، نورین اختر کو، لندن میں 3 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا۔ ہر سال تمام پیرشز میں سلسلہ وار بائبل سٹڈی کے 12 موضوعات دینے کی روایت ڈالی۔
तीसरा दौर 2013 से 2016 का है। 2013 में वीनस हाउसिंग स्कीम फिरोजपुर रोड में दफ्तर की नई इमारत तामीर की गई, स्टाफ मेंबर में इजाफा हुआ और कई स्टाफ मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने लगे। कैथलिक तफसीरुल कलाम की 36 किताबें छाया की गई, जो 36,000 किताबें थी। इलाही मुकाशफा की गोल्डन जुबली मनाई गई, कलाम का साल करार दिया गया। बाइबल मैराथन पाकिस्तान 2015 कराची में मुनक्किद की गई और स्टडीज इन बिब्लिकल साइंसेज बाइबल मुकद्दस के खतो किताबत का कोर्स उसका अजरा किया गया। कौमी कलाम क्विज 2016 में मुनक्किद की गई और इंडिया में पहली बार 10 लोगों को और दूसरी बार 13 लोगों को 1 माह की बाइबल कोर्स के लिए भेजा गया। गुज़श्ता 15 सालों से हम गाहे बगाए लोगों को 3 या 2 माह के लिए देई वर्बम सेंटर नेमी रोम में भी भेजते हैं। चौथा दौर 2017 से 2019 का है। इसमें लार्ज फॉन्ट बाइबल 2019 में छापी गई, बाइबल मुकद्दस की इलाहियात, डिक्शनरी ऑफ बिब्लिकल थियोलॉजी के वॉल्यूम्स छपे, बाइबल मुकद्दस के अलूम की इस्तिलाहात की डिक्शनरी छपी, बच्चों की बाइबल 80,000, बाइबल स्टडी समर कैंप यूबिया 2017 से शुरू हुआ और कैथलिक बिब्लिकल स्टडी बाइबल स्टडी टूर्स का आगाज हुआ 2017 से। हम लोगों को उर्दन, मिस्र और तुर्की में तकरीबन 11 बार लेकर गए और 350 लोगों ने ज़ियारत की। पांचवा दौर 2020 से 2022 का है। मुकद्दस जोन की 16 साला वफात की बरसी 2020 में मनाई गई। हमने 3 साला प्रोग्राम तरतीब दिया जिसका अनुमान था औलाद को कलाम दो और कलाम को औलाद दो। नौजवानों के साल में नौजवानों की बाइबल शाया की गई। बाइबल और नौजवान पर 4 रोज़ा सेमिनार मुल्तान में हुआ। इसके अलावा इन सालों में हमने बाइबल एंड आर्ट, बाइबल और मीडिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बाइबल ऑडियो रिकॉर्डिंग, बाइबल मैराथन पाकिस्तान 2020 रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा और अब बाइबल मैराथन पाकिस्तान 2021 फैसलाबाद में। कैथलिक उर्दू रेफरेंस बाइबल जेरूशलम बाइबल पर भी काम हो रहा है और अक्टूबर 2019 में हमने सना इकबाल को मुकद्दस सहाइफ की स्टडी के लिए 4 साल के रोम भेजा। ये एक मशहूर तरीन और मुश्किल तरीन यूनिवर्सिटी है। अब हमें वसी तर जगह चाहिए, बहुत बड़ा हॉल चाहिए, रेफरेंस लाइब्रेरी के लिए कमरा चाहिए और सबसे अहम जरूरत स्टोर रूम की जरूरत है। एक बात इन सारी बातों से वाज़ेह है कि ये कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान एक कमीशन से कहीं ज्यादा एक बाइबल इंस्टीट्यूट की जानब बढ़ रहा है और कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान महज एक अदारा और अदारे का दफ्तर नहीं बल्कि कलाम के फ़रोग़ के लिए एक तहरीक है जो जद्दोजहद और अज़्म के साथ आगे बढ़ रही है। खिदमात की वुसअत के पेश नज़र दफ्तर के लिए वसी तर जगह चाहिए थी। हमने चेयरपर्सन से, बोर्ड मेंबरान से बातचीत करके और फैसला करके 2019 में ये जगह खरीद ली। अब फौरी ज़रूरत के तहत हम इसका रस्म इफ्तिताह कर रहे हैं। आज ना कोई इबादती ईद है, ना कोई तारीखी यादगार है, लेकिन 2 माह के अंदर अंदर 75,000 बाइबल मुकद्दस कोरिया से छप कर आएंगी। उनको खुश आमदीद कहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हम बहुत अर्जेंसी में इस संगे बुनियाद की रस्म की तकरीब कर रहे हैं। मैं फादर इमैनुअल यूसुफ मानी ज़मीन खरीदने पर, कानूनी कागजात बनवाने में और अब इमारत की तामीर के लिए नक्शे बनवाने में, पानी, बिजली, गैस की फराहमी के कामों में, शजरकारी के कामों में, एक एक चीज़ और एक एक काम शुरू कराने और पाया तकमील तक पहुंचाने में उनकी रहनुमाई और मुआवनत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ये सब कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि वो कलाम मुकद्दस से अकीदत और कलाम मुकद्दस के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। इस ज़िमन में मैं सिस्टर फ्रांसिस ओपी, सिस्टर सुनीला रफ़ीक ओपी और उनकी कम्युनिटी, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, और हम ये इकरार करना चाहते हैं कि उन्होंने बेहद फ़याज़ी के साथ हमें खुश आमदीद कहा है और आज की तकरीब के सारे इंतज़ामात में हर किस्म का और कसरत के साथ और फ़याज़ी के साथ मुआवनत की है।
میں ان کا اور ان کے سٹاف کا معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تقدس مآب بشپ اندریاس رحمت چیئرپرسن، عزت مآب بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ وائس چیئرپرسن، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے بورڈ ممبران، کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے سٹاف کی بے حد محنت پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنگل میں منگل لانے کی کوشش کی ہے. میں تمام مخیر حضرات اور مخیر اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ 19 سال کی خدمت میں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کا مسلسل اور فیاضی کے ساتھ ہمارے خیر خواہ بنے اور ہماری مدد کی. کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی 19 سالہ تاریخ میں ہم خصوصی طور پر اپنے گزشتہ چیئرپرسنز کو یاد کرتے ہیں. آرچ بشپ ایورس پنٹو، آرچ بشپ جوزف کوٹس اور بشپ جوزف ارشد، اس وقت یہ بشپ تھے، اور گزشتہ بورڈ ممبرز کو اور اپنے معاونین کو اور بالخصوص مرحومین کو یاد کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، اب خداوند میں سو گئے ہیں. میں آج کی اس بائبل اور بہار کے موضوع کی تقریب میں کلام مقدس کے فروغ کے حوالے سے خصوصی خراج تحسین دختران پولوس کو پیش کرتا ہوں جو کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے وجود سے پہلے 1958 سے کلام مقدس روم سے شائع کروانے، پاکستان میں منگوانے اور لوگوں تک پہنچانے میں 50 سال خدمت کرتے رہے ہیں اور اب بھی تمام تر پاکستان میں اسی خدمت میں مصروف ہے. اور ہم خصوصی طور پر سسٹر ڈینیلا کو یاد کرتے ہیں، ان مرحومہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان سے پہلے سسٹر ڈینیلا اور فادر انجو سوارس اس خدمت پر مامور تھے. روزوں کے ایام کے احترام میں اور کرونا وائرس کی حدود کو پیش نظر ہم نے مہمانوں کی تعداد اور کھانے کے مینو کو محدود رکھا ہے. آج ہم نے چند مخصوص اور نمائندہ اشخاص کو مدعو کیا ہے جس میں آپ سب شامل ہیں. ان میں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے بورڈ ممبران، عہدیداران اور صرف شہر لاہور میں مقیم سسٹرز پروونشل اور فادرز پروونشل اور نیشنل کمیشنز کے ایگزیکٹو سیکرٹری جو لاہور شہر میں ہیں، سیمنریز کے ریکٹرز، تربیت کے گھروں کے ڈائریکٹرز اور کوئی نمائندہ اشخاص کو دعوت دی ہے. علاقہ انچارج پیرش پریسٹ اور بابو جی، کیتھولک ٹی وی کو اور کلام مقدس کی بین الکلیسیائی متحدہ خدمت کے پیش نظر ہم نے پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری جناب اظہر مشتاق اور برکت ٹی وی سے بھی مہمان منگوائے ہیں جو ہمارے پڑوسی ہیں. ہم نے آپ کو دعوت دی ہے تاکہ آپ کلام مقدس کے فروغ کی خدمت میں ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں اور اشروں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. کلام مقدس کے فروغ کی سفر میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. نمبر 1، آپ کلام کے دوست بنیں، بی بائبل فرینڈلی. کلام کے لاکھ دوست میں شامل ہوں، دوسروں کو دعوت دیں اور ہمارے بائبل کورسپونڈنٹس کو اور خط و کتابت کے ذریعے بائبل کا کورس میں دوسروں کو شامل ہونے کی تلقین کریں. 2، کلام مقدس کے لیے عطیہ جات دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس شائع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. آج بہت خوبصورت وقت ہے، اس تقریب کے دوران کسی بھی وقت آپ بائبل مقدس کے فروغ کے لیے علامتی طور پر ہدیہ دے سکتے ہیں. اور تیسرا، کلام کے فروغ کے لیے دعا کریں کہ خدا کا کلام پاکستان میں پھیل جائے. بائبل مقدس کے فروغ کی خدمات میں مشغول اشخاص، اداروں اور تحریکوں کے لیے 2020 کا سال بہت اہمیت کا حامل تھا. اس سال عالمگیر کلیسیا نے مقدس جیروم کی وفات کی 1600 سالہ برسی منائی. مقدس جیروم بائبل مقدس کے عظیم مترجم اور مفسر تھے جو سن 420 میں فوت ہوئے اور جن کی 30 ستمبر کو منائی جاتی ہے. کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان نے اس 16 سالہ برسی کو منانے کے لیے 3 سالوں پر محیط 2020 سے 2022 تک پروگرام تشکیل دیے اور یہ مرکزی موضوع رکھا، اولاد کو کلام دو اور کلام کو اولاد دو. اس 1600 سالہ برسی کے موقع پر پوپ فرانسس نے اپنی دستاویز ان کا ذہن کھولا
एपेरेउत इलिस जारी की और उन्होंने हुक्म जारी किया, फरमान जारी किया कि हर साल इबादती साल के आम अतवारों में तीसरा अतवार कलाम का अतवार मनाया जाए और 30 सितंबर को मुकद्दस जरोम की ईद के मौका पर सारी दुनिया में यौम कलाम मनाया जाए। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के लिए अजीम बरकत है कि इस साल 24 जनवरी 2021 को कलाम के अतवार के मौका पर पोप फ्रांसिस ने कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान को बाइबल मुकद्दस का तोहफा दिया और ये सना इकबाल ने वसूल किया जो रोम में 4 साल साहिब मुकद्दस का मुताला कर रही हैं। और पोप साहब ने कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के लिए बाइबल देते हुए कहा, यह बेशकीमत तोहफा और खजाना लो और इसे अपने लोगों में बांटो। खुदा का कलाम ईमान की नशो नुमा करेगा और उनकी उम्मीद को रोशनी बख्शेगा। पोप साहब ने सना इकबाल को यह भी बताया कि वो पाकिस्तान की कलीसिया और लोगों के लिए रोजाना दुआ करते हैं। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान की नई इमारत का संगे बुनियाद और वसी तर दफ्तर एक तरफ बरकत है और दूसरी तरफ ये एक तकाजा भी है। इमारत के साथ साथ खिदमत में भी वसअत होती रहनी चाहिए। हम खुदाए बुजुर्गों बरतर के लिए इंसानों को अपना कलाम अता करने पर शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी इलाही हिकमत बख्शने पर तमजीद करते हैं, जिसकी बदौलत अब खुदा के कलाम का तर्जुमा, इशाअत और तशहीर करने के काबिल है। मुकद्दस यूसुफ का साल करार दिए जाने पर हम मुकद्दस यूसुफ से और मुकद्दसा मरियम की सिफारिश से दुआ करते हैं कि वो हमें सिखाएं और हमारी रहनुमाई करें कि हम किस तरह खुदा के कलाम की परवरिश और हिफाजत और तशहीर करने में अपना अपना किरदार और जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मैं आप सबको चेयरपर्सन की तरफ से, वाइस चेयरपर्सन की तरफ से, बोर्ड मेंबरान की तरफ से, ऑफिस स्टाफ की तरफ से कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के नए कौमी दफ्तर की तकरीब संगे बुनियाद की खुशियां और बरकत मुबारक कहता हूं। अभी हम आपको पहले गिफ्ट के तौर पे कुछ दिखाएंगे, फिर गिफ्ट के तौर पर आपको कुछ देंगे। तो ये एक तो हम बाइबल मुकद्दस दिखाना चाहते हैं जो पोप साहब ने कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान को 24 जनवरी 2021 को कलाम के अतवार के मौका पर दी, और फिर आपको वो बहुत ही खूबसूरत और यादगार तस्वीर भी दिखाते हैं जो जिस वक्त पोप साहब ने ये बाइबल मुकद्दस दी। इसके बाद आपको अभी तो दिखाने वाला तोहफा है। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फख्र और एजाज़ है, और आज के मौका की यादगारी में हमने एक सादा सा कैलेंडर छपवाया है तो सादा लेकिन बहुत अहम है। हम दावत देंगे फादर इमानुएल यूसुफानी को कि वो इसकी रहनुमाई करें। आने वाले हर मेहमान को पापा आज़म पोप फ्रांसिस की तरफ से इस कैलेंडर का तोहफा भी दिया जाएगा। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं और अभी मैं दावत देती हूँ इज़्ज़त माब आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ, कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के वाइस चेयरपर्सन आर्च डायसिस लाहौर, कि वो आएँ और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। और साथ ही साथ मैं उनको दावत दूंगी कि आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से संगे बुनियाद इस ईंट जो इमारत की बुनियादी इकाई है उसको भी बरकत दें। सबसे पहले अपने बाइबल कमीशन के चेयरमैन बिशप इंद्रियास जो बिशप है फैसलाबाद के, आप सबकी ज़ोरदार तालियों में लाहौर डायसिस में शामिल करता हूँ। कुछ अर्सा हुआ उन्होंने जब से बाइबल कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से ये जिम्मेदारी कबूल की, उस वक्त से वो बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़ी वक़्त के साथ वो मीटिंगें भी करते रहते हैं, बाइबल के फ़रोग़ के लिए काम भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर बाइबल के इल्म इलाहियात के माहिर, बाइबल के उस्ताद
फादर इमानुएल आसी को, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं बाइबल कमीशन के, आपकी जोरदार तालियों में मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ साथ बोर्ड मेंबर्स, फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स और सारे ऑफिस में काम करने वाले, और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं बाइबल के ऑफिस के बारे, ज़मीन के बारे, मेरे जहन में जो ख्याल था मैं फादर जी को पहले भी बता रहा था। 2009 में मैं ऑक्सिलरी बिशप बनकर लाहौर में आया, तो फादर जी ने उसके बाद मेरे ख्याल 2010 या 12 की कोई बात है, तो मुझे दावत दी और मैं विनिस हाउसिंग स्कीम में उस वक्त किराए के मकान पर था, किराए के मकान पर। तो उस वक्त भी मैंने फादर जी को कहा, मैंने कहा कि फादर जी जब भी कोई बाइबल का जगह लेनी है ना, बड़ी जगह लेनी है। इसके बाद जब अभी वाला जो है जगह है, एक कनाल कुछ मरले जगह है, जब इसकी ब्लेसिंग के लिए आया, फादर जी ने मुझे कहा कि आप उसकी बरकत के लिए आए। बिशप एवरेस्ट नहीं आ सके थे तो मैं आया था। तो उस वक्त भी जब आया तो देखा, तो मैंने कहा फादर जी ब्लेसिंग तो हो रही है, लेकिन खुदा हमें टाइम भी देगा और बहुत बड़ी बरकत देगा। तो उसका अपना एक बड़ा सा एक लगा हो, नाम लगा हो, बाइबल पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन का, और बड़ा कोई लॉन भी हो और वहाँ इस तरह का प्रोग्राम हो जहाँ अपना ही घर हो, अपनी जगह, हर घूमने फिरने की भी जगह हो और वसी कमरे भी हों, दफ्तर भी हों। तो इसके लिए कोशिश जारी रही। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस संग बुनियाद बाइबल कमीशन की जो अभी, और मैं आपको बताऊं जब मैं वहाँ से वापस जा रहा था, जब किराए के मकान पर था, जब बाइबल ऑफिस किराए के मकान पर था, तो पता नहीं क्यों पूरा वक्त जब मैं वापस घर जा रहा था तो मेरे जहन में एक बात डिस्टर्ब करती रही, और वो वही थी कि जो हजरत दाऊद ने नातान से कही, नबी से कही कि खुदा का घर तो वो चमड़े के उसमें रहता है, खैमे में है, और मैं इतने अच्छे घर में हूँ। मैं सोच रहा था कि खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है वो किराए के मकान पर है और हम सब अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। तो खुदा ने हमें आज मौका दिया है कि आज खुदा का कलाम जहाँ पर उसकी अशात भी होगी, छापा भी जाएगा, उसके सारी देखभाल भी की जाएगी, फाजी ने बताया स्टोर किया जाएगा, वहाँ से उसकी तरसील की जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पर जाएगा। वो एक खूबसूरत जगह होगी जहाँ पर खुदा के खादिम और बाइबल के एलची, बाइबल को फ़रोग़ देने वाले बड़ी इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ वहाँ काम भी करेंगे और उसकी तशरीह के लिए काम भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, ताकि हम पाकिस्तान में उर्दू में, क्योंकि हमारी ज़ुबान उर्दू है और बाइबल कमीशन के साथ मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है, कई तरीक़ों से रहा, तो अभी मुख्तलिफ ज़ुबानों में भी छप रही है। फाजी ने उसको बताया है, फ़ॉन्ट भी मुख्तलिफ तरीक़ों से छप रहे हैं, और इसके अलावा भी यह है कलाम के लाख दोस्त भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से आज ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़ुद भी कलाम दोस्त बनेंगे, और अगर शायद हमारे पास कलाम के दोस्त का शायद कोई फार्म हो, शायद आपके घर के मेंबरों को भी कलाम के दोस्त बनाएंगे। इसी तरह SBS जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है उसमें भी आप लोग हिस्सा लेंगे, बेशुमार नौजवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इस तरह से हम जो हमारे अकीदे की बुनियाद है, कलाम है, हम उस कलाम को समझेंगे और अपने अकीदे में, अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो बिशप जी खुदा आपको बहुत बरकत दे, फाजी आपको, फादर मानी को जो इस सारे प्रोग्राम में शामिल हैं सबको, ताकि हम मिलजुल कर कलाम के अशात के लिए, कलाम की तशरीह के लिए, कलाम के फ़रोग़ के लिए काम करते रहें। खुदा आप सबको इसका बड़ा अजर अता करे मसीह खुदावंद के वसीले से। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरकतों और नेमतों के लिए, तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ए खुदावंद, तू अपने कलाम के लिए, कलाम के इशात के लिए, फ़रोग़ के लिए हर दौर में और हर वक्त अपने लिए लोग चुनता है। तूने आज भी अपने लोगों को चुना है और ये जगह भी फराहम की है। ये बुनियादी ईंट, इसे बरकत दे, ताकि ये चट्टान, ये ईंट, जिस तरह से तूने मुकद्दस पत्रस से कहा कि तू चट्टान है,
اور یہ چٹان پر ہی بنائی گئی بلڈنگ اے خداوند تیرے جلال کے لیے استعمال ہو، اور اسی بلڈنگ سے اے خداوند کلام کی کرنے، کلام کا نور ہم تک اور غیر قوموں تک بھی پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ اب ہم سنگ بنیاد کو کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کے نئے بننے والے دفتر کی آج پہلے دن جائے تعمیر پر جائیں گے، تو ہم پروگرام کا اختتام یہیں پر کریں گے، صرف آخری رسم وہاں پر کریں گے جہاں پر عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس خصوصی موقع پر، اس خصوصی برکت کے لیے آج ہم دعوت دیں گے تقدس مآب بشپ اندریاس رحمت، چیئرپرسن کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان، کہ وہ عمارت کی بنیاد تو ہم سائٹ پر جا کر رکھیں گے، لیکن میں ان کو دعوت دوں گی کہ اپنا اظہار خیال یہاں پر پیش کریں۔ بہت اچھی بات ہے، خوابوں کو حقیقت مل رہی ہے اور خدا کا کلام کرائے کے گھر سے اب اپنے گھر میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے خدا باپ کا شکر گزار ہے، تمام محسنوں کا مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کا جو کلام کی ترویج کے لیے، کلام کی اشاعت کے لیے، کلام کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو اس لیے ان سب کو مبارکباد۔ یہاں جتنوں نے بھی کام کیا ہے، جو بعد میں بھی اس کو سنبھالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، ان کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کا یہ گھر جلد بنے اور ہم سب ایک مرتبہ پھر یہاں ہوں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ہم اپنی یوخرستی عبادت کا اختتامیہ گیت گائیں گے، اور اس گیت کے ساتھ ہی ہم لوگ جائے تعمیر پر جائیں گے۔